name is Vikram Singh. I am your English tutor at Education World Gurdaspur. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ आओ देखते हैं आर्टिकल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि सब तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟੈਂਪਲ ਚਰਚ या कॉमन थिंग्स होंगे बेड टेबल चेयर एटसेट्रा इन्हां दे नाल कदों आर्टिकल लगना है ते कदों नहीं लगना ठीक है जी ये जेडे कॉमन प्लेसेस या थिंग्स ने इन्हां नूं दो तरीके नाल आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट इज प्राइमरी पर्पस सेकंड इज सेकेंडरी पर्पस प्राइमरी मतलब मेन जो दा काम है ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੋ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋ ਆਰਟੀਕਲ ठीक है जी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ मैं आर्टिकल यूज करना द है द आर्टिकल मैं यूज करना है ठीक है जी स्कूल टेंपल चर्च बेड टेबल ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन्हां नूं समझदे हैं जिद्दां मैं कहां he goes to temple to study एग्जांपल दे विच देखो टेंपल दे अगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा ठीक है जी जे मैं कहां he goes to temple goes to the temple to meet Ravi in this case ਆਪਾਂ द ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਰੀ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੇ क्लियर है प्रे ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਂਪਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦ ਲਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਟੂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਹ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰਵੀ advise you to practice a lot so that you follow your mother's advice and practice makes a man perfect ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सर्कल करके दसना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਕੀ ਹੈ advice practice advice and practice
देखो किसी केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ SE यूज कर रहा ਹਾਂ, किसी केस ਦੇ ਵਿੱਚ मैं CE यूज कर रहा ਹਾਂ, डिफरेंस ਕੀ ਹੈ समझ रहे हैं? ठीक है जी। देखो जी एक ਹੁੰਦਾ है एडवाइस CE ਨਾਲ, एक एडवाइस ਹੁੰਦਾ है SE ਨਾਲ। सेम चीज प्रैक्टिस ਹੁੰਦੀ है CE ਨਾਲ ਤੇ प्रैक्टिस SE ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ CE ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ SE ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਰਬ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਈਸ CE ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ CE ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾउन ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ SE ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ SE ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਰਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ समझते हैं। रवि एडवाइस यू टू, रवि सब्जेक्ट है, क्लियर? सब्जेक्ट तो बाद साडे की आऊगा? वर्ब आऊगा। इथे वर्ब लगा है, बिल्कुल सही है, ये पार्ट बिल्कुल सही है। रवि एडवाइस यू टू प्रैक्टिस, टू तो बाद हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आती है, टू तो बाद की आती है वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, मगर इथे की लगाया है CE, वर्ब नहीं लगाया, इस करके की है गलत। इथे क्या आएगा? प्रैक्टिस SE। A lot so that you follow your mother's advice, CE, mother ਦੀ advice। S dot ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ apostrophe S, apostrophe S ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ belonging, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। mother ਦੀ advice ਹੈ ਤੇ apostrophe S ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ noun ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। noun ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ noun ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ practice makes a man perfect। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾउन ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਵਰਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ CE ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਰੂਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਸ CE ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ CE ਵਾਲਾ ਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ SE ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ SE ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्लियर है? नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, आप समझते हैं। एग्जामिनर जो है कनेक्टर्स ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ऊपर नीचे सेंटेंसेस में कर देना, आप समझते हैं। नो सूनर आई हैड, मैं पार्ट से भी डिवाइड करके दसदा, आई हैड एंटर्ड द क्लास when it began to rain। क्लियर? मैंने पार्ट से डिवाइड करता A B C and D, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। No sooner I had entered the class when it began to rain, ठीक है। सेकंड एक और लिख के देते हैं, hardly या he never, hardly वाला आप नेक्स्ट दिन देख लेना। he never goes to temple nor she does। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟ से डिवाइड कर लेना। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, एडवर्ब तो बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर साडा सब्जेक्ट आता है। क्लियर है? ये रूल है, फर्स्ट रूल तो ये है, हुण इहनूं समझो। नो सूनर की है साडा एडवर्ब, एडवर्ब तो सेंटेंस स्टार्ट होया, उस तो बाद आ गया सब्जेक्ट, जो कि गलत है। आना की सीगा हैड, ते हैड पहला लगावांगे, की बनेगा नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास, ठीक है। उस तो बाद एक और बहुत बड़ी गलती है, वो भी समझ लेने की है। सैकेंड ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਰੂਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ no sooner ਲਗਾਣਾ ਹੈ, no sooner ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ then ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। no sooner helping verb ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ then, hardly, scarcely, rarely, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ when। क्लियर? आ सेकंड रूल है साडा, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है जी।
कि नो सूनर ਦੇ ਨਾਲ then लगाना है, हार्डली स्केर्सली रेयरली ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ when लगाना है, ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ नो सूनर ਦੇ ਨਾਲ when, जो कि गलत है। ਕੀ लगेगा ਇੱਥੇ then, क्लियर। सेकंड एग्जांपल क्यों गलत है उन्हें समझते हैं। he never goes to temple nor she does, वो nor वर्ड जो है वो गलत है, ठीक है। उन कॉम्बिनेशन की यूज करते हैं आप हमेशा neither nor का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है जी। और नीदर जब लगाया नहीं नॉर पहला किधर लग जाऊगा, ठीक है जी। तो इत्थे की आएगा पहला आएगा नीदर, ये करेक्शन है, क्लियर है, समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट रूल और समझने की कोशिश करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रनाउन और एम्फेटिक प्रनाउन की होते हैं, इन्होंने समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव ते एम्फेटिक प्रनाउन, हुन जेड़े आ प्रनाउन मैं लिखन जा रहा him, her, it, your, them, ठीक है। कुछ वर्ड्स लिखे, इन्हां दे नाल जदों आपां सेल्फ या सेल्स लगाने हैं ते ये प्रनाउन की बन जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रनाउन या एम्फेटिक प्रनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रनाउन ते एम्फेटिक प्रनाउन दे विच की डिफरेंस हुंदा है, पहला तो समझो ये एग्जांपल दे विच इन्हां दी यूज की हुंदे हैं। ये प्रनाउन लगाने की लोड़ सानू क्यों पैंदी है, जिवें मैं बोला आई विल डू इट, ये सेंटेंस अपने आप च कंप्लीट है, मगर जे मैं फोकस देने दे लई एक वर्ड लगादा जो इत्थे मैं लगाया माई सेल्फ। और माई सेल्फ किहदे बारे गल हो रही है, आई दे बारे, क्लियर है। माई सेल्फ किन्नू पॉइंट आउट कर रहा है, आई नो। जदों कोई वर्ड अपने आप नु रिफ्लेक्ट करता है, सब्जेक्ट नु रिफ्लेक्ट करता है, वो वाला वर्ड रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रनाउन होता है। इन्हां दोवां दे विच डिफरेंस ये है, जे आपां सेंटेंस दे विच वो वर्ड लगाइए ते वो सेंटेंस कंप्लीट होए, ठीक है, ओदे लगान नाल ही सेंटेंस कंप्लीट होए ते वो साडे हुंदे आ रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। जे आपां ओनू लगाइए या ना लगाइए ओदे नाल कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुंदा, सिर्फ लगान नाल की हुंदा फोकस ज्यादा हो जांदा। जिवें इत्थे आई विल डू इट, ये सेंटेंस कंप्लीट सी, माई सेल्फ लगान नाल और ज्यादा आपां उत्ते फोकस कीता, और माई सेल्फ ने किहदा काम कीता, एम्फेटिक प्रनाउन। ए वाला प्रनाउन किथे की काम कर रहा है इत्थे, एम्फेटिक प्रनाउन दा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ रूल रिलेटेड है, समझते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रनाउन ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड एक रूल है, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। एम्फेटिक ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया, आई होप सो, समझते हैं हम एग्जांपल ਦੇ ਨਾਲ। he enjoyed the party, क्लियर। ये सेंटेंस सही है, नहीं, ये सेंटेंस गलत है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ वर्ब ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। सब्जेक्ट है, एंजॉयड ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ वर्ब, ਉਹਨੇ ਤੇ ऑब्जेक्ट ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਈ, मिसिंग है, मिसिंग है। ਹੁਣ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ऑब्जेक्ट ਜਦੋਂ गिवन ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, he enjoyed, he ਦੇ ਨਾਲ himself लग जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, ठीक है। he enjoyed himself at the party, clear। he enjoyed the party, he enjoyed himself at the party, इथे at लगाना सीगा, at लगा दो, ठीक है, at the party, क्लियर है। इथे ऑब्जेक्ट मिसिंग सीगा, himself ने की काम किया, ऑब्जेक्ट का काम कर दिया, ठीक है। और इस केस दे विच ऑब्जेक्ट दा काम कीता, यानी इहदे लगाना सेंटेंस कंप्लीट होया ते ए वाला केड़ा प्रनाउन बन गया, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, क्लियर है। समझदे हैं रूल की है। कुछ वर्ड्स इदां दे हुंदे हैं जिन्हां दे नाल सानू रिफ्लेक्सिव प्रनाउन लगाना पैंदा है, जो कि ऑब्जेक्ट दा काम करदे हैं। केड़े-केड़े वर्ड, एंजॉय हो गया, अवेल हो गया, ठीक है, एब्सेंट हो गया, एडजस्ट, इक्वेट, ये कुछ वर्ड्स ने जिन्हां दे नाल आपां
ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है ते कई केसेस दे विच आपां ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेने हैं। क्लियर है, समझ आया जी? चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो बाद प्रोनाउन जेडे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो बाद आप समझते हैं प्रोनाउन दे दो केसेस, 3 केसेस बना सकते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्टिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझोगे तो नेक्स्ट रूल तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। प्रोनाउन दे 3 केसेस होंगे, सब्जेक्टिव जदों एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए, ऑब्जेक्टिव जदों एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाए, पोसेसिव यानी पोसेस जदों आपां ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई अधिकार ਦੀ ਗੱਲ करते हैं। जे मैं I ਨੂੰ एज अ सब्जेक्ट यूज करदा हां ਤਾਂ वो I ही रहंदा है, जे मैं I ਨੂੰ एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना होए तो की बन जाएगा मी, और पोसेसिव यूज करना होए तो my या mine। क्लियर है? इवें ही दा की बनूगा ऑब्जेक्टिव हिम ते पोसेसिव बनेगा हिज। क्लियर है? शी दा की बनूगा हर ते हर या हर्स। क्लियर है? इट दा इट ही रहंदा है ऑब्जेक्टिव केस ते पोसेसिव केस बन जाता है इट्स। क्लियर है? नेक्स्ट दे दा them ते possessive case their या theirs। क्लियर है? we the us ते our या ours ਹੁੰਦਾ है ਇਹਦਾ possessive case। लास्ट एक बचा you ਨੂੰ भी समझ लेना, you ਦਾ you ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस और possessive बन जाता है your ਤੇ yours। ਇਹ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ? ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨੋਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਰੂਲਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम टाइम में काम आ सकਣ। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं। एक एग्जांपल ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। he is as fast as ब्लैंक में छड़ रहे हैं तो अगली ऑप्शन दे रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ I him me या D his। दसो इस ब्लैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? इस ब्लैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? I। क्यों? कई बच्चों ने तो me लगा देता ना, he is as fast as me, कईयों ने him भी लगाता होगा, his लगाता होगा, इत्थे आएगा I। ठीक है? he is as fast as I। ठीक है? कंपैरिजन ही दा किदे नाल होया? I दे नाल। हुण इहनूं समझदे हां। पिछली जो पेज है मैं तुहानूं ओहदे नाल समझाना है। ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन मैं तुहानूं दस्सिया सी कंपैरिजन की ਹੁੰਦਾ कंपैरेटिव डिग्री दे नाल ਹੁੰਦਾ है। कंपैरिजन करदे हां दो चीज़ां दा कंपैरिजन करना है ते आपां जदों भी कंपैरिजन करना है सेम फील्ड दे पर्सन दे नाल कंपैरिजन होगा। जे आपां I दा किसी नाल कंपैरिजन करना है ना ते इन्हां दे विचों ही किसी दे नाल कर सकदे हां, ऑब्जेक्टिव केस दे नाल नहीं कर सकदे। यानी I दा कंपैरिजन हिम दे नाल या हर दे नाल, इट दे नाल, them दे नाल, us दे नाल या you दे नाल नहीं हो सकदा। सब्जेक्टिव केस दे विच हो सकदा है he दे नाल, she दे नाल, it दे नाल, they दे नाल, we दे नाल या you दे नाल। सब्जेक्ट दा कंपैरिजन सब्जेक्ट दे नाल, ऑब्जेक्ट दा कंपैरिजन ऑब्जेक्ट दे नाल। क्लियर है जी? समझ आई? एक एग्जांपल और करके देखते हैं, फिर तुहानूं शायद समझ आ जाए अच्छे तरीके ना। समझो इन्हूं। एग्जांपल है he speaks more fluently than। इत्थे क्या होगा दोस्तों? इत्थे ऑप्शन है I, your, his या him। दसो ही है
सब्जेक्टिव केस है तो कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस नहीं होएगा, सब्जेक्टिव केस ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ I, he speaks more fluently than I। क्लियर है, समझ आया? तो कंपैरिजन ਆਪਾਂ सेम चीजां ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। चलो नेक्स्ट एक और चीज समझते हैं, और नेक्स्ट रूल समझते हैं, ठीक है जी। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखना, he went there already। सेकंड है he has gone just now। थर्ड है Ravi did not submit the assignment yet। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ। this one is wrong, this one is correct and this one again is wrong। ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ already, ठीक है जी, लिखा है already, just, yet, ठीक है जी, और केड़े वर्ड है, never, ever, up till now, just now। ये कुछ वर्ड्स ने, इन्हां दे नाल हमेशा ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, परफेक्ट फॉर्मेशन वाले टेंसेस ही यूज हो सकते हैं। हम देखो इथे जस्ट लगाया सी तो मैं परफेक्ट के लिए की लगाया सीगा हैज, ठीक है, हैज लगाया सी इस करके सेंटेंस करेक्ट हो गया। इथे आपां सिंपली वर्ब दी सेकंड फॉर्म लगाती जो कि गलत है, ठीक है, इथे भी आपां वर्ब दी सेकंड फॉर्म लगाती जो कि गलत है। क्लियर है, समझ आया? नेक्स्ट एक और रूल कर दिया और उसके बाद अपन लेक्चर ऐसे कंप्लीट करांगे। देखो he is as good as Ravi। second है Shyam is not as good as Ravi। third है Sita is so good as Ram। and the fourth one Shyam is not so good as Ravi। और समझते हैं केड़े-केड़े सेंटेंस सही है केड़े गलत है। this one is correct, this one is correct, this one is not correct and this one is correct। ठीक है, इन्हां दे विचों एक इनकरेक्ट होया, कॉमन की सीगा देखो, या कहिए not as good as, so good as, not so good as। क्लियर, कॉम्बिनेशन यूज कीता आपा as the और as the या so और as the, ठीक है, यही कॉम्बिनेशन यूज किया गया। इन्हां दे विच पहला जो रूल है वो ये बनता है कि as या as और as के कॉम्बिनेशन या so और as के कॉम्बिनेशन दे विच हमेशा आपा पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है। क्लियर, पॉजिटिव डिग्री वर्ड यूज करोगे। सेकंड थिंग ये है कि as और as ਦਾ कॉम्बिनेशन ਆਪਾਂ पॉजिटिव वे ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ as good as ਆਪਾਂ पॉजिटिव वे, not as good as 네ਗੇਟਿਵ ਵੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। so और as ਦਾ कॉम्बिनेशन ओनली 네ਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ 네ਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ सीता is so good as, तो ये सेंटेंस की हो गया साडा गलत, क्योंकि so और as ਦਾ कॉम्बिनेशन कभी भी 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ यूज, पॉजिटिव ਦੇ ਲਈ यूज नहीं कर सकते, सिर्फ 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ यूज किया जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर।
आज ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਰ ਰੂਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਟਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ EW ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ पहुंच सकन। तब तक के लिए थैंक यू।